Hello everyone and welcome to Algoripple. My name is Adil Abbas and here we are going to start the A-level computer science course 9618. Uh, in this playlist we are going to discuss the AS level uh, course whose paper 1, and this paper 1 has overall 11 chapters. I'm going to follow the chapter scheme of the Lang field book, uh, which you can see here. The title page of that book is here. If anyone wants this book, you can ask me in comment section. I can give you this book via email. If anyone feels any difficulty, any questions, you can ask me in comment section. And if you need any extra attention, you can email me. My email will be available in the description also. So now we will start our first introductory class uh, with the chapter name Information Representation. In this first chapter, we are going to find out how many types of information is available in this world and how we can convert that information, how we'll insert that kind of information in our computer. So moving to the easiest language, Urdu, uh, what is an information? Information is actually the data extracted from the raw facts and figures. Okay, here we have over four types of information. First one is called the we have four types of data available, information available in this world. First one is called data is available in the form of numbers. Second, we can say that data is available in the form of letters, letters of any language. Third, data is available in the form of image and also in the form of sound. We have total four different types of data, sorts of data. These are the ways of the data which is available in this world. We are going to discuss the first form of data today, who's called the number system. So uh, you can observe, आप देखेंगे कि हमारा ए लेवल का ए एस का जो ये पहला चैप्टर है, इट इज ऑलमोस्ट रिलेटेड टू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ओ लेवल एज वेल। वैसे ही नंबर सिस्टम यहाँ मौजूद होगा, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हम पढ़ेंगे इसमें, लेकिन बाकी सारा नॉलेज हमारा ओ लेवल का ही होगा। ये वो बेसिक सीढ़ी है, आप लोगों के लिए बेस है, जिसकी बुनियाद पे आप आने वाले चैप्टर सभी लैंग्वेजेस और सिक्योरिटी की तरफ जाएंगे। उसके बाद डेटा साइंसेस की तरफ आप बढ़ सकते हैं। एंड द मेजर change in the course you will feel at the end of this AS and at the start of the A2 chapters. So we have number system। पहली फॉर्म है इंफॉर्मेशन की कि डेटा हमारा नंबर्स में मौजूद होता है, उसको हम नंबर सिस्टम्स कहते हैं। So there are many types of number system। ऑब्वियसली अगर हम ए लेवल से निकल के कैम्ब्रिज कोर्स से निकल के देखते हैं तो हमारे पास नंबर सिस्टम की फोर टाइप्स हैं। बट इन कैम्ब्रिज हम सिर्फ तीन टाइप्स को पढ़ते हैं। पहली टाइप है उसमें से, उसको हम कहते होते हैं जी डेनरी नंबर। सेकेंड फॉर्म इज कॉल्ड बाइनरी नंबर। थर्ड फॉर्म इज कॉल्ड हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर्स, ये तीन फॉर्म्स हैं जो हमारे पास मौजूद होती हैं कैम्ब्रिज के कोर्स के अकॉर्डिंग। सो पहले डेनरी नंबर की बात करते हैं। व्हाट इज अ डेनरी नंबर? डेनरी नंबर इज a number system we are going to encounter with it on our daily basis। इसमें टोटल 10 नंबर्स होते हैं। सो टोटल 10 नंबर्स that is starting from 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9।
इन 10 नंबर से मिलके हमारा डेनरी नंबर सिस्टम बना हुआ होता है। ओके। हम डेनरी नंबर सिस्टम को दूसरे वर्ड्स में अगर बोला जाए तो हम इसे डेसिमल सिस्टम भी कहते होते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। और every symbol inside of this denary number system, it is called a digit. अगर कहीं पूछा जाए पेपर्स में व्हाट इज अ डिजिट, सो every symbol inside of this denary number system is called denary digit और a simple digit। दोनों नाम आप यूज कर सकते हैं। अगर हम दूसरी सेकंड टाइप की तरफ आते हैं, देन व्हाट वी हैव हियर, वी हैव बाइनरी नंबर सिस्टम। व्हाट इज अ बाइनरी नंबर सिस्टम? बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर टोटल दो नंबर्स होते हैं, टू नंबर्स। फर्स्ट वन इज जीरो, सेकंड इज वन। टू नंबर्स होते हैं। एंड एवरी डिजिट और एवरी सिंबल इनसाइड ऑफ दिस ternary number system is called a bit. So we can say that every digit in binary number system is a bit. We have heard about it कि अगर हमारे पास एक डाटा है 10 10 0 1 so every digit inside of it, this 1, this 0, this 0, every digit ये क्या कहलाता है? ये एक बिट कहलाता है। देन वी हैव सेवरल नेम्स फॉर देम कि फर्स्ट वाले बिट को हम क्या कहते हैं, लास्ट वाले बिट को हम क्या कहते हैं। जब हम हमारे पास डेटा इन नंबर्स की फॉर्म में होगा तो हमने कहा डेटा तीन डिफरेंट नंबर्स में हो सकता है, तीन डिफरेंट सिस्टम्स में हो सकता है। पहला है डेनरी नंबर सिस्टम, दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम और तीसरा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हमारी इंफॉर्मेशन इन तीन डिफरेंट सिस्टम से मौजूद हो सकती है। और इन सिस्टम्स में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, वी हैव टू फाइंड अ वे कि हम उस डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को कैसे कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं, कंप्यूटर कैसे उसे अंडरस्टैंड करेगा और कंप्यूटर कैसे हमें उसका रिस्पॉन्ड करेगा। ये बेसिक जो थॉट चल रही है हमारे इस चैप्टर के अंदर, वो इसके अकॉर्डिंग चल रही है। अब नेक्स्ट वी से दैट जब हम डेटा कंप्यूटर के अंदर ऐड करवाते हैं, कंप्यूटर में डेटा इंसर्ट करवाते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बाइनरी नंबर सिस्टम, हमने बेसिकली पढ़ा हुआ है, पहले हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स बाइनरी डिजिट्स। कंप्यूटर को सिर्फ जीरोज और वंस की समझ आती है, ये हमने पहले कंप्यूटर के बेसिक्स में पढ़ा हुआ है। तो जब हम बाइनरी डेटा जो बिट्स हैं उसको भेजेंगे, तो हम बिट्स जब भी हम इंफॉर्मेशन भेजना चाह रहे होते हैं, हम ट्राई करते हैं कि उन बिट्स को इकट्ठा करके, जमा करके अपने कंप्यूटर में फीड करवाया जाए, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम एक और नाम यूज करते हैं बाइट का। सो व्हाट इज अ बाइट? बाइट इज अ ग्रुप ऑफ 8 bits that is treated as a single digit, or we can say that single unit. Byte, a group of 8 bits that is treated like a सिंगल यूनिट। मतलब वो जो 8 बिट्स हैं वो मिलके क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को बना देती हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमारे पास है ये एक हमारे पास बाइट मौजूद है, बिकॉज इट हैज टोटल 8 बिट्स, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये 8 बिट्स से मौजूद है, तो हम इसको क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। देन एक और चीज़ है कि जो हमारे ये राइट साइड पे जो पहली बिट होती है, इसको हम कहते होते हैं
LSB. LSB stands for least significant bit, और जो हमारी लेफ्ट साइड पे बिट होती है इसको हम कहते होते हैं MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. Okay, we'll use them later, we'll discuss them later, we'll elaborate them later. थर्ड जो नंबर सिस्टम हमारे पास मौजूद है उसका नाम हमारे पास है जी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. ये हमारे पास थर्ड नंबर सिस्टम है. In hexadecimal number system, we have total 16, 16 digits that are starting from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. After 9, we have A, B, C, D, E, and F. Here, this A is representing 10, B is representing 11, C is representing 12, same 13, 14, and 15. So overall, we can say that it is starting from 0 goes to 9, then A goes to F. सो हमारे पास टोटल 16 वैल्यूज हैं इसके अंदर. 0 से 9 तक 10 हो गई और आगे 5 हमारे पास अल्फाबेट्स. ये हमारे पास क्या होता है जी, ये हमारे पास हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है. नाउ इन तीनों में से अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम कौन सा है हमारे पास? सबसे इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम हमारे पास मौजूद होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. क्यों? हम इसके ज़रिए जो हमारे सिस्टम्स हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस हैं, इनको हम रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं. हम इसके ज़रिए अपना डेटा को इजीली स्टोर कर सकते हैं. और इसको स्टोर करवाने के लिए हमें बाइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. हम इनको स्टोर करवाने के लिए हम लोग निबल्स को यूज़ करते हैं. What is a nibble? Nibble is same treated like a single unit as uh, a byte, but it has 4 bits. 4 bits create a nibble. जो पिछली एग्जांपल हमने यहाँ ली है हमारे पास, वी हैव 10, 10, 11 डबल जीरोस. इसके अंदर अगर देखा जाए सो वी कैन से दैट ये 8 बिट्स है. इसके अंदर देखा जाए तो इसको हम कहते हैं कि ये 1 बाइट है. नाउ हाउ मेनी निबल्स वी हैव हियर? हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे. सो ये फर्स्ट 4 बाइट्स, और वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड आल्सो, कोई इशू नहीं है. अब अभी इशू नहीं है. कैलकुलेशंस में जब जाएंगे तब हम एक साइड को डिफाइन कर लेंगे कि तब हम हमेशा इसको लेफ्ट साइड से पढ़ा करेंगे. ये पहला निबल है आपके पास, देन ये आपके पास दूसरा निबल है. ठीक है, ये हमारे बेसिक 3 नंबर सिस्टम्स है. नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डिस्कशन में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हम कैसे इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम इन तमाम डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर. सो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? हमें अपने नंबर सिस्टम्स में मौजूद डेनरी नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर्स को अंडरस्टैंड करता है. बट हम ये भी देखेंगे कि कैसे एक बाइनरी नंबर सिस्टम को हम क्या हेक्साडेसिमल में या डेनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं. और देन हम नेक्स्ट इसका डिस्कस करेंगे कि अगर हमें चेक करना पड़े कि जो हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं, बाइनरी, डेनरी, हेक्साडेसिमल, इनकी इंटरनल कोडिंग क्या होती है. नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इंटरनल कोडिंग्स ऑफ नंबर्स. और ये हम इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि डेली हम लोग मिल लें. नेक्स्ट टॉपिक हम मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ. इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस internal
codings of number. So if you feel any difficulty, any hesitation, you can ask questions and you can DM me. Okay, thank you so much.